Okay, good morning, dear guys. Today's topic is biotechnology and its prospects with reference to genetically modified organisms, GMOs. Very interesting topic. Biotechnology has been a common word nowadays for everyone globally, and everyone has to know the biotechnology. Most probably I will finish in 2 classes, otherwise I will be taking 3rd class to complete, and I would like to tell you about the biotechnology, its tools, techniques, process, products and current progress. So I start this project, first part of my lecture. Just let me set my yes. Yes, biotechnology. If you are preparing for PCSIS or for BSc में CUG, PG or for any class, you have to begin with the origin of the words. That's why in each and every lecture I start from the origin of the word. Who coined such word? What is this? What this word belong? What language this word belong? Biotechnology always logy जहाँ पे लगा हो, that is Greek word. Logy is to study biotech. Bio means biological, maybe plant element, techniques. To study of technique of life, organism. Means this term biotechnology was used for the first time by Karl Irke, a Hungarian agriculture engineer in 1919, and he is regarded as father of biotechnology. Now, before I switch on biotechnology, I would like to tell the reason why there was need of biotechnology. First, I let you know that crops, food crops, plants, timber plants, economic plants, fruit plants, grasses, animals, humans and all of our communities are badly damaged by insect, are badly damaged by pest. Pest means harmful organism. Pest may be insect, invertebrate or invertebrate, maybe insect, maybe rat, maybe any organism. And this already existed in nature. It's natural creation, nature's creation. If there is plant, there must be some insect. There must be some organism associated with that plant. If there is man, certainly there is some insect or animal associated with that. Maybe lice, maybe mosquito, maybe plague, so many amoeba, protozoa, bacteria, viruses. This is natural creation. But the damage caused by such organism in nature is up to a limit, and in natural process both host and pest live coherently and maintain ecosystem, maintains balance of their population. ऐसा नहीं कि एक कीड़ा है पूरा पौधा खा गया तो फिर दूसरा क्या खाएगा, ऑटोमेटिकली ही विल डाई, दैट इंसेक्ट विल डाई. There won't be any further generation of insect. So nature is natural creation that during this process both, whether it is host or pest, both of them have to live. Now, when the man came on the scene of earth, he started agriculture, horticulture, plantation, constructions, altering the lands, and changing the natural ecosystem into agroecosystem. And with the bulging population, with the population increase, certainly required huge quantity of food. So, to obtain the production and productivity of any crop,
The same man started controlling insects by its own by using certain chemicals, but in the beginning there was no chemicals, no insecticide, no pesticide to control insect, except in first generation pesticide that we call arsenic, lead. आपने देखा होगा आर्सेनिक होता है, लेड, तमाम फॉसिल फ्यूल ऑयल्स होते थे, पेट्रोलियम ऑयल से भी हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया जाता था. नाउ आफ्टर दैट सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड केम इनटू प्रैक्टिस. सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड मीन्स आर्गेनोक्लोरिन, आर्गेनोफॉस्फेट का हम आपको समझाते हैं. आर्गेनोक्लोरिन क्या है? DDT BSC आपने सुना होगा, दैट इज आर्गेनोक्लोरिन. आर्गेनोफॉस्फेट क्या है? आर्गेनोफॉस्फेट दैट इज आपने न्यूआन, मैलाथियान, मेटासिस्टिक. आर्गेनोफॉस्फेट, न्यूआन, मैलाथियान, मेटासिस्टिक. सपोज यू डोंट नो, द न्यूआन इज वेरी कॉमन इंसेक्टिसाइड. उसको लोग पी करके सुसाइड भी कर लेते हैं. लाइकवाइज थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड आफ्टर, बिकॉज ऑफ द इल इफेक्ट्स ऑफ दिस, ill effect means toxicity, residual toxicity in food, environment and other parts. Third generation pesticide was developed. Third generation hormone, juvenile hormone, use of juvenile hormone. Juvenile hormone is a type of hormone already produced in insects, and that has been chemically synthesized and being used for the control of it. So there is no ill consequences like chemicals. इंसेक्टिसाइड के साथ में कोई नुकसान है. आफ्टर दैट फोर्थ जनरेशन इज पेस्टिसाइड, एंटी हार्मोनल. नाउ लीव, वी आर कमिंग टू द टारगेट. नेक्स्ट केम इनटू प्रैक्टिस बायोलॉजिकल कंट्रोल. देखिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर, सिंस इन नेचर. एग्जाम्पल लेट मी गिव यू. कैट ईट्स रैट मीन्स दैट इज नेचुरल प्रोसेस, and this is called as biological control. Lizard eats insects, the biological control, and snake eats certain insects in the field, agriculture field. That's why they are called as, insects are called as farmer's friend. But here this is the example of biological control, and controlling animal is called as bioagent. उसको बोलते हैं bioagent. Nowadays there is production of bioagent artificially, lab level. After that microbial control came into practice. Microbial means use of microbes, bacteria, fungi, virus, rickettsia and protozoa, and these are being produced commercially. Bacteria, fungi, virus and protozoa. After that botanical pesticide. Botanical pesticides are already in use since time immemorial, when the man came, started civilization. Biopesticide means pesticides of biological origin, maybe from plant or animal. Like a neem, you know, neem plant is very important for human and plants also. Neem is best insecticidal and medicinal plant. Also, its parts are used as biofertilizer. It possesses hormone ingredients. तो नीम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप जानते हैं कि आपको कहीं चोट लग जाती है, उसकी पपड़ी घिस लेते थे. Nowadays there are number of products that have been prepared as an insecticide, as biofertilizer, as medicines. So this is called as biopesticide. But biopesticide is pesticides of microbial origin, maybe bacteria, fungi, virus, plant or animal. ये biopesticides है. Now our target is genetic control, यानी genetic engineering. Now this has genetic control means over and above all these, there is a new branch of insect control, genetic control, controlled by genetic engineering, which we study under biotechnology. Use of cryogene, I will let you know. Now next slide you see. You see, in the first slide I told you many insecticide, organochlorine, organophosphate, carbamates, ये botanical pesticides and precocin etc. These were heavily used in the field to control insect. These chemicals, pesticides were used
heavily. Where? In our food, vegetable food, and due to heavy use of these chemical pesticides caused residual toxicity for long time. Where? In our food, vegetables, food, grains, milk, meat, environment, air, water and soil. And by pesticide, bacterial formation, in biopesticide there are number of microbacteria, fungi, virus, but only bacteria is 90%, contribution of bacterial pesticide is 90%. So, the residual toxicity that caused because the heavy use of pesticide in farmers in our vegetable, food, grain and water is causing a lot of problem, human health hazard, environmental hazard. Let me give you example. Nowadays you go to market to buy cabbage, cauliflower, brinjal, bottle gourd, bitter gourd, snake gourd, rich gourd, spinach, ladies finger etc. भिंडी सब खरीदते हैं. You find ग्लिटरिंग चमकती हुई आपको गोभी मिलेगी, चमकती हुई लंबी सी भिंडी मिलेगी, चमकता हुआ आपको बैगन मिलेगा. वाई? आज से 20-30 ईयर्स बैक आप भिंडी खरीदें, आधी भिंडी टेढ़ी मिलती थी, ब्रिंजल में आपको छेद दिखते थे, कैबेज में भी छेद दिखते थे, लौकी भी बहुत सीधी नहीं होती थी. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट वो भिंडी टेढ़ी हो जाती थी, बैगन में छेद हो जाते थे. नाउ बिकॉज ऑफ द हेवी यूज ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स देयर इज रेसिडुअल टॉक्सिसिटी, यानी अबव परमिसिबल लिमिट ऑफ ह्यूमन टॉलरेंस, और दैट रेसिडुअल टॉक्सिसिटी परसिस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, सॉइल, इन फूड, ग्रेन्स, मीट एंड मिल्क. दैट्स वाई उसमें कोई इंसेक्ट आ नहीं सकता आप, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर रेसिडुअल टॉक्सिसिटी पड़ी हुई है. और दैट कमोडिटी यू एंड मी ईट और एनिमल्स ईट एज ए फूडर. सर्टेनली देयर इल इफेक्ट्स ऑन आवर human health, animal health, that's we call health hazard, even in air, water, soil and air. So, because of the use, misuse, refuse and abuse of these chemicals, एक एग्जाम्पल देता हूँ, यूज, मिसयूज एंड रिफ्यूज एंड एब्यूज ऑफ केमिकल. DDT, एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ ऑर्गेनोक्लोरीन में. DDT insecticidal property of DDT was known earlier, discovered by someone, but its insecticidal property, कि इसमें कीटों को मारने की शक्ति होती है, गुण होता है. its insecticidal property was discovered by Paul Muller in 1939 during Second World War. Why? Because in those days during wars our soldiers used to travel by ship, water transport, and water transport is a time taking journey. तो उनके बाल खूब बढ़ जाते थे, बाल में क्या बढ़, जू पड़ जाती थी, लाइस पड़ जाती थी, मच्छर बहुत होते थे, ये पड़ जाते. तो after the discovery of insecticidal property of DDT, it was prepared only and only for the control of इंसेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस, यानी आदमियों के इंपॉर्टेंस के लिए जो है, हमारे मच्छरों को मारना है, जू को मारना है, क्योंकि जू से लाइस हो जाती है, टाइफाइड हो जाता था, मच्छर मलेरिया नो, तो उसके लिए तैयार की गई थी. बट व्हेन द साइंटिस्ट केम टू नो इट्स इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, साइंटिस्ट मीन पैथोलॉजी, दे स्टार्टेड यूजिंग DDT like anything without knowing its effect. इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इतना इस्तेमाल हुआ कि it caused heavy residual toxicity in food, fiber, plants, animals, air, water and whatnot. तो it was badly used, यानी first it was used, but after that it was badly used. Wherever it was discovered only for public health, but it was used on for agriculture, forest and orchard pest. It was misused. Misuse means
कि what is the recommended dose of that DDT, what was the recommended dose of DDT was not followed strictly, because insecticide always, even today, is sprayed by or dusted by a non-skilled labor, illiterate labor. Farmers, they are very poor fellow, they are not academically sound, even they are not taught by us, and their aim is to spray or dust the pesticide or insecticide and insect till the death, जब तक उनके आँख के सामने मर नहीं जाएगा तब तक छिड़कते रहेगा. तो इट वॉज बैडली, मतलब इट वॉज मिसयूज्ड, एंड बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल टॉक्सिसिटी कि अब हमको बीमारी हो रही, कल्सर हो रहा है, अल्सर हो रहा है, बर्निंग हो रही है आँखों में, तो इसको क्या किया कि द सेम इंसेक्टिसाइड हैज़ बीन रिफ्यूज्ड एंड नाउ एज इट इज़ अब्यूज कि नो, अभी हम सब सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं देयर शुड बी ए organic farming system. We have to follow organic farming system. We have to use of less pesticide and less fertilizer, less chemical. We have to reduce the use of chemicals. So what happened? Use, misuse, refuse and abuse. अब इसके बाद क्या हो गया कि same DDT which was discovered in insecticidal property was discovered in 1930 has been banned in 1984. यानी जस्ट आफ्टर 44 years that DDT has been totally banned for use in agriculture fields, and so on. There are many organophosphates, so many insects that has been banned or they are allowed for restricted use. So because of these problems समझ गए ना कि पेस्टिसाइड से क्या प्रॉब्लम. Now there is next system. We have to develop transgenic crops or genetically modified crops, या genetically modified. If you call genetically modified organism may be plant or animal. So here we restrict transgenic crop. What is transgenic? Transgenic is, it is genetically engineered plant or animal to develop inbuilt resistance against any disease or insect. So this is now. What is biotechnology? इसकी definition कैसे कहेंगे आता है सिंपल. अभी आप समझें एक्सप्लॉयटेशन, अभी वन बाय वन आई विल लेट यू नो. अभी काफ़ी जब आगे आ जाएंगे तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू विल कम टू अंडरस्टैंड फुली. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पजेज. ये समझ में नहीं आया, हम समझ रहे हैं आपको. नेक्स्ट, द यूज ऑफ लिविंग सेल्स एंड बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोसेस. ये भी आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसलिए हम आपको धीरे धीरे चल आगे सब समझ में आ जाएगा. नाउ ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजीज की डिफिनेशन क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मीन्स मे बी प्लांट और एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कुछ भी हो सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेसेस कॉन्स्टिट्यूट बायोटेक्नोलॉजी. एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इनकी एप्लीकेशन ये क्या है, और प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट बायोटेक्नोलॉजी. कैसे अभी दिखाएंगे. अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन, biotechnology consists of the controlled use of biology, कहता है controlled use of bioagents such as microorganisms, bacteria, fungus, virus or cellular components for beneficial use. हमारे ह्यूमन के लिए beneficial use के लिए there should be a controlled use of microorganisms. कैसे अभी I see. Applied, what are the applied use of biotechnology? Why do we go for, why we are running after biotechnology? Because they are applied use in the human health, for human health, animal health, animal industry, dairy, fisheries, aqua, सब में जगह बायोटेक्नोलॉजी से हम इसको बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं टू हैव मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी with least problems. Medicines, chemicals and biochemicals, फूड प्रोसेसिंग एंड बेवरेजेज, सारे हमारे अल्कोहल बेवरेजेज जितनी हो रही सब इसी से हो रही है. आपने पावरोटी बनते देखा है, वो सब बायो, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बायोगैस देखा है, दैट एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. आपने बायोडाइजेस्टर रेलवे स्टेशन में देखा है कि नहीं? रेलवे में सब जगह वो लिखा हुआ टॉयलेट में जाइए, हाँ लिखा, और आपको संगम में लगा था. इट इज़ द रिसर्च ऑफ DRDO. Biodigester was developed by only and only our DRDO laboratories,
and we also installed during Mahakumbh in Sangam. Mahakumbh means after 144 years in 2013 in Allahabad. When I installed 2 biodigester as a sample, the commissioner of this city bought a number of biodigester, and I think on roads you will be watching number of biodigesters are parked everywhere and they are used. This big. And क्राइम्स एंड पेरेंटेज डिस्प्यूट, आपको पता है क्राइम्स में आपके जितनी कोर्ट हमारी क्राइम्स में पेरेंटेज डिस्प्यूट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है कि असली बाप कौन था, नकली बाप कौन था, क्रिमिनल कौन था. इन्वायरमेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ फेल्स में भी हो रहा है हम इसको रिन्यूएबल. पॉपुलेशन कंट्रोल एंड माइनिंग, वन बाई वन आई टेल यू. फर्स्ट मेडिसिनल यूज, सम सेलेक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू ह्यूमन वेलफेयर. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में जीन थेरेपी टू क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर, हमारी अनुवांशिक प्रॉब्लम में समस्याएं हैं या डिसऑर्डर्स है तो उसको जीन थेरेपी से, जीन आजकल डीएनए रिपेयर और जीन थेरेपी चल रही है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिनमें इनफर्टिलिटी, आजकल इनफर्टिलिटी एमंग ह्यूमन एंड एनिमल हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन काज्ड बाई केमिकल्स. आई डोंट से ओनली पेस्टिसाइड, केमिकल्स. So infertility is increasing. Yesterday I read an article in Amar Ujala. It is big article, you must read. Go and collect your yesterday's Amar Ujala. Big news, big article is there. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिनको इनफर्टिलिटी बच्चे नहीं है, एक तो इनफर्टिलिटी जिन बच्चे नहीं उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा रहा है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स क्रिमिनल्स यूजिंग डीएनए और एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग, यू नो. रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स भी बना दी गई फॉर ह्यूमन हेपेटाइटिस, ई कोलाई एंड वैक्सीन फॉर पिग्स, रेबीज वायरस, etc. एंड वैल्यूएबल ड्रग्स लाइक ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंटरफेरॉन एंड ह्यूमन एंड एनिमल ग्रोथ हार्मोन्स. जिसको कुछ लोगों में ग्रोथ नहीं होती ह्यूमन में, कहते बहुत दुबला है, पतला है, और अ गर्ल डज नॉट लुक लाइक ए गर्ल, तो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स डेवलप्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. नाउ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स, इथेनॉल ग्लिसरीन. अब हम इथेनॉल ग्लिसरीन हम यहाँ भी फ्यूल में करते, इथेनॉल एंड बायोगैस. दिस इज थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन. अब देखिए आप पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स लेते हैं. दीज ऑल आर प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. एंड फ्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम चीप सोर्स लाइक शुगर केन, बगास वुड, ईटीसी ह्यूमन एंड. आपको अपने पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि शुगर केन के इथेनॉल हम बनाते हैं जूस से, और उसकी जो बगास खोइया जिसे बोलते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी यूज से हम इसके क्या है उससे गैस भी बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर रहे हैं. ह्यूमन एंड एनिमल. मिनरल्स है कॉपर एंड यूरेनियम भी इससे निकाल रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोटॉक्सिन प्रोटीन, एंजाइम इंजीनियरिंग आएगा आगे. नाउ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? एनिमल बायो टेस्ट ट्यूब बेबीज इन ह्यूमंस, यू नो, सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा. इन्वॉल्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर. इन विट्रो अंदर जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का. इन विट्रो ये क्या है? लैटिन वर्ड है. इन विट्रो, इन विवो. इन विट्रो इनसाइड, इन विवो आउटसाइड, इन विवो आउट, इन विट्रो राइट. थोड़ा कहीं गलत हो तो यू मे करेक्ट मी प्लीज. लैटिन वर्ड. एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ETT इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू हैव मोर एंड मोर प्रोजेनी फ्रॉम एनिमल्स. काउ से आजकल अच्छी नस्ल के काउ से ETT एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक से फर्टिलाइज करके बाहर और उसमें यूट्रस में डाल दिया जा रहा है और उसको प्रेग्नेंट कर दिया जा रहा है. हार्मोन इंड्यूस सुपर ओवुलेशन इन फॉर्म एनिमल. अब हार्मोन से सुपर ओवुलेशन करा दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो. प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर इंक्रीज. आजकल तमाम गाय बना दी गई, हमारी गाय बना, रोजलिन गाय है, ब्याही गाय, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रोड्यूस मोर मिल्क. ग्रोथ रेट रेजिस्टेंट टू डिजीज, ग्रोथ रेट रेजिस्टेंट टू डिजीज. हमारा ग्रोथ बढ़ा दी गई और रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट डिजीजेज काज बाई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड इंसेक्ट्स. इन्वेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इसका क्या है? इफिशिएंट सीवेज ट्रीटमेंट. आज का सीवेज ट्रीटमेंट यू हैव सीन, यू माइट बी अवेयर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट.
हर जगह सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है थ्रू बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता है बायोडाइजेस्टर एक एग्जाम्पल है जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट एवन इलाहाबाद में आपको जाना चाहिए, STPC में देखना चाहिए। और आप तो देख के चले आते हैं, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ UPSC जो है ग्रुप के, आपको पूछना चाहिए कि कैसे होता है, व्हाट आर दोज बैक्टीरिया, हाउ द ट्रीटमेंट इज डन। नाउ deodorization of human excreta, डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड मैग्नीशियम, मैनेजमेंट ऑफ ऑयल, पेट्रोलियम को डिग्रेड करते हैं, ऑयल स्पिल्स, ये जो समुद्र में जब जहाज़ के टैंकर फट जाते हैं, बह जाता है तेल या मिट्टी में, तो इसको भी डिग्रेड करने का है पार्ट। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वाटर एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल इफ्लुएंट्स, वाटर कहते हैं हमारा सीवेज वाटर जा रहा है, टैनरीज का पानी गंगा जी में जा रहा है, नालों का पानी गंगा जी में जा रहा है, केमिकल फैक्ट्रीज का पानी गंगा में जा रहा है, और लॉट ऑफ toxic materials are in sewage. That water is detoxified through biotechnology system. आपने एक शब्द आया देखिए इफ्लुएंट, अब यहाँ कर व्हाट इज इफ्लुएंट? इफ्लुएंट समझाता हूँ कि आजकल जितनी फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, गवर्नमेंट के आदेश हो रहे हैं, ऑल फैक्ट्रीज शुड बी जीरो इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मीन प्रवाह, यानी फैक्ट्री में पानी इस्तेमाल हो, केमिकल इस्तेमाल हो, नॉट इवन सिंगल ड्रॉप विल गो आउट, कोई प्रवाह जाना नहीं चाहिए, सो एज टू स्टॉप मिक्सिंग विथ आवर रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर और एनी वाटर। तो जीरो फ्लड मीन्स कि विद दिस प्रोसेस ईच एंड एवरी लेफ्ट ओवर आर रिफ्यूज पार्ट ऑफ द फैक्ट्री ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल और ऑयल, every product is reutilized, whatever is, so as to avoid even a single drop of chemicals flowing out. Biocontrol of plant diseases and insect pests by using viruses, bacteria. आपको बताया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला रैट कैट का एग्जाम्पल दिया, बट देयर आर नंबर ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, अमीबा, फंजाई, they do not only spread diseases, they do not only causes diseases, disease ही नहीं, बैक्टीरिया causes disease, फंगस causes disease, वायरस causes disease, ठीक है, सारे जितने डिजीज करते हैं हम, बट these बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आल्सो यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट्स। आप मर जा उसमें डाल दीजिए उसका इनोकुलेशन बना के, इंसेक्ट को कंट्रोल कर लेगा, फंगस को कंट्रोल कर लेगा। नाउ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जर्म प्लांट कंजर्वेशन थ्रू स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। जर्म प्लांट एक वर्ड आ गया, जर्म प्लांट, जो आपके बहुत क्वेश्चन पूछे, जर्म प्लांट, राइट एन एसे ऑन जर्म प्लांट या डिस्क्राइब जर्म प्लांट। और जर्म प्लांट आप सीड, एक एग्जाम्पल तो सीड इज जर्म प्लांट, जिससे हमको एक पौधा बनता है। अभी जर्म प्लांट के नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं जर्म प्लांट क्या। अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ग्लोबली इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर, देयर इज टेरर ऑफ बिग वॉर एनी टाइम एनीवेयर, and this will cause the loss of life. This may cause loss of life, maybe animal or human. Even plant may also, we may lose plant also. So in such situations, such condition, to save those germ plots, we have made, even globally there are germ plant centers. Even India has also made a germ plant center in Delhi, NBPGR, National Plant Genetic Bureau and Resources, NBP, National Bureau of Plant Genetic and Resources in Delhi, with its number of centers. अभी आएगा डिटेल में। मॉलिकुलर मार्कर, अच्छा, जीन ट्रांसफर, जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर इंसेक्ट, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन develop inbuilt resistance in the plant, maybe cabbage plant, bottle gourd, cauliflower or any plant, to combat with insects, to avoid insects. Isolation of stable soma clonal variants with improved yield traits, resistant to disease, cold, herbicide, metal toxins, salt and other habitat. हम क्या है, प्लांट को वी कैन
डेवलप प्लांट रेजिस्टेंट टू डिजीजेज, रेसिस्टेंट टू साल्ट। राजस्थान में पौधे नहीं ग्रो कर सकते बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी इन वाटर, सो वी कैन डेवलप वाटर साल्ट टॉलरेंट प्लांट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक एग्जाम्पल और हम आएंगे और डिटेल आएंगे। नाउ जर्मप्लाज्म की बात आई। व्हाट इज जर्मप्लाज्म? Germplasm is living tissues from which new plants can be grown. Germplasm is living tissues from which new plant can be grown. It can be seed, seed भी हो सकता है, or other part, plant part, plant क्या हो सकता है, leaf भी हो सकती है, a piece of stem भी हो सकता है, pollen or even just new cells that can be turned into a whole plant. आप समझे, सीड से ही पौधा नहीं बनता है, कटिंग से भी तो पौधा बन जाता है, लीफ से भी पौधा बन जाता है, तमाम प्लांट है, और पीस ऑफ प्लांट से भी बनता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी एक शब्द आएगा एक्सप्लांट, उससे रिलेटेड है। एंड फ्यू सेल्स दैट कैन बी टर्न इनटू फ्यू सेल्स। आवर बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ सेल्स। आवर बॉडी मीन्स बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल, किसी की भी बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल्स, सिंगल सेल्स। Unit of our bodies, human bodies, unit of animal bodies, unit of plant bodies, single cell, right? Like ये दीवार किसकी बनी है? ब्रिक की। तो यूनिट ऑफ दिस हाउस इज ब्रिक। लाइकवाइज यूनिट ऑफ our एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी सेल। अब एक सिंगल सेल से भी टोटल प्लांट बना सकते हैं, टोटल प्लांट, टोटल एनिमल बना सकते हैं। देखिए कैसे। नाउ अब थोड़ी हिस्ट्री भी जान लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया हिस्ट्री, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज, देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज हाईलाइटेड बाय द 69th सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड एट मैसूर इन 1982। यानी इट्स वेरी न्यू सब्जेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी वेरी न्यू सब्जेक्ट। जस्ट बिफोर 38 or 37 years back, just 37 or 38 years back, it was biotechnology highlighted in 69th session of Indian Science Congress. You know Indian Science Congress? Yes. Every January, first week of January, every year, first week of January, Indian Science Congress is held for a week, and that is the biggest Science Congress of India. So many countries they attend करती हैं। अब 82 में यानी 37 साल पहले, 38 साल पहले पहला हुआ था। अब इसी के रेफरेंस में अब जब इतना जान ही लिया कि 69 में तो फर्स्ट कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन द एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता फ्रॉम 15 से 17 जनवरी इन 2014। सॉरी 1914 करेक्ट कर देंगे। अच्छा बात समझ में आ गई ना? हाँ, 1914 विद द ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष मुखर्जी देन वीसी ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। यानी 1914 में पहला साइंस कांग्रेस हुआ था। और जान लीजिए इसको, आपको इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। दिस कांग्रेस इज ऑलवेज हेल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर फॉर अ वीक। पहला हुआ था, तो पहला बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत यहाँ से हुई थी। आफ्टर दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट नेशनल NBTB, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, टू इनकरेज एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च एक्टिविटीज इन बायोटेक्नोलॉजी, वेरी लेटेस्ट सब्जेक्ट। इन 1986 यानी 35 years back, a separate department of biotechnology was created within the Ministry of Science and Technology. आप तैयारी करें तो आपको सारी मिनिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। Now the same biotechnology यानी 3 research centers of biotechnology have been organized. वो NBT जो DBT Department of Biotechnology and Ministry of Science and Technology organized at 3 centers। शुरू में IRI न्यू दिल्ली, IRI no, Indian Agriculture Research Institute, ICMR Indian Council of Medical Research, NBRI National Botanical Research Institute, CSIR Council of Scientific and Industrial Research, CMAP Central Industrial and Aromatic Plants। ये सब अलग अलग मिनिस्ट्री का, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है तो कोई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, राइट।
तो IRI फ्रॉम ICR, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. दिस सेंटर हैज बीन नेम्ड एज नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोलॉजी, NRCPB. इट केम इनटू ऑपरेशन 1993. अब ये DBT ने क्या दिया कि 3 सेंटर बनाए. पहला NRCPB इन IRI में, न्यू दिल्ली में. इट केम इनटू ऑपरेशन 1993, कि अभी जस्ट कितना साल पहले हो गया, 27-28 ईयर पहले. तो वेरी न्यू सब्जेक्ट. अब IRI न्यू दिल्ली, व्हाट इज IRI न्यू दिल्ली? यहाँ थोड़ा और बता दूँ, क्वेश्चन बन गया आपका. IARI, Indian Agriculture Research Institute, was initially established in 1905 in a village पूसा in बिहार. बिहार में एक गांव था पूसा, जहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम में IARI बना एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए. बट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. बट बिकॉज ऑफ बिग अर्थक्वेक इन दैट एरिया, द सेंटर वाज शिफ्टेड टू पूसा इन दिल्ली. पूसा इज ए प्लेस इन दिल्ली. दैट्स वाई दैट IRI is also called as Pusa, sorry, that was shifted to IRI New Delhi, in New Delhi. So since it was established initially in Pusa, it is still called as Pusa Institute. दिल्ली में भी उसको कहते हैं पूसा इंस्टीट्यूट, IRI. एंड इट वाज शिफ्टेड इन 1935 में 1905. और अभी इसको हम बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट. एक सेंटर ये बनाया. दूसरा सेंटर बनाया NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, गाय भैंसों पे जहाँ डेयरी कैटल पे होती, करनाल में, हरियाणा. थर्ड सेंटर था, अभी आ रहे हैं इस पर, IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आइजट नगर, बरेली में. आइजट नगर, इज्जत नगर जिसे कहते हैं. आइजट, हम तो उर्दू में इज्जत बोलेंगे, इट वाज इंग्लिश नेम आइजट नगर. आइजट कोई अंग्रेज का नाम था, आइजट नगर. ठीक है, जैसे यहाँ मुखर्जी नगर होता ना अपना, इस तरीके से अंग्रेज़ों को टाइम में से चला आ रहा है. इस्टेब्लिश इन 1930, ये जो था 1930 में IVRI बन गया था. इसी की एक ब्रांच, IVRI की एक ब्रांच है IVRI मुक्तेश्वर. ये जो बहुत पहले से मुक्तेश्वर जी अल्मोड़ा, सारी नैनीताल से थोड़ी दूर पे ये मुक्तेश्वर हाइट पे है. 1893 में इस्टेब्लिश की गई. एंड दिस वाज द ओरिजिनल सेंटर फॉर वैक्सीन एंड बैक्टीरियल कल्चर. इसी का और हम बता दे रहे हैं, इसको बता दीजिए थोड़ी देर में. नाउ फर्स्ट वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया. तो 3 सेंटर में दिया था बेटे. एक तो IVRI आइजट नगर, सेकंड जो था IRI दिल्ली, थर्ड NDRI करनाल, और चौथा हमने आपके नॉलेज के लिए लिख दिया कि IVRI मुक्तेश्वर, हमने आपके ज्ञान के लिए लिख दिया. नाउ वैक्सीन फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. अभी धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट इसलिए रहा चूँकि वैक्सीन नाउ डेज इज डोमिनेटिंग इन आवर नॉलेज. हमारे सारे अखबार वैक्सीन से बने हैं, सारा कुछ उसी के सेम. तो इसलिए जो है हो रहा है. द इनिशियल वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज हाफकिन इंस्टीट्यूट फॉर प्लेग वैक्सीन. द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लिम्फ वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन शिलांग एंड फ्यू अदर प्लेस. शिलांग में हमारा पहला हाफकिन इंस्टीट्यूट था प्लेग वैक्सीन के लिए. ये सबसे पहले शिलांग में 1890 में. इससे पहले 1889 में मुक्तेश्वर में खुल चुका था. नाउ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया. DBT हैज फंडेड द क्रिएशन. अब ये सारा साइंस कांग्रेस में आफ्टर टेकिंग डिसीजन 3 सेंटर बने. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी केम इनटू फोर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फंडेड द क्रिएशन ऑफ 7 सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर एट द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. फर्स्ट मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी मदुराई तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता, नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ
एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस। ये शुरू में जैसे 7 सेंटर में बने थे। इन एडिशन टू DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली आर आल्सो promoting research activities in biotechnology. And nowadays, almost all universities, agriculture, all basic science universities, they have started biotechnology. Even MSc and BSc program. Not only in MSc, MSc biotechnology, MSc agriculture, but BSc biotech has also started, has been started. So, ICR has created biotechnology wings in several of its craft research. ICR की जितनी लेबोरेटरी है हिंदुस्तान में सब में छोड़ बना दिया। इंडियन पल्स रिसर्च यूनिट कानपुर में पहले खोला, फिर IGFRI ग्रासलैंड, एक ग्रास रिसर्च पर वहाँ पे झांसी में वहाँ पे खोल दिया। DBT हैज फोकस्ड अटेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी अप्रोचेज। अब देखिए जर्मप्लाज्म का सेंटर कहाँ बनाया गया? DBT ने बनाया। फैसिलिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर डिपॉजिटरी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR न्यू दिल्ली बना लिया टू सेव एंड कंजर्व आवर टिश्यूज रादर वी से जर्मप्लाज्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन ऑफ क्लोनली प्रोपागेट। हम आपको क्लोन से बनाते हैं, जैसे आपको बीज तो गेहूँ चना का रख लेंगे, शुगर केन कैसे, शुगर केन का कंजर्व कैसे, लट्ठा तो नहीं कर सकते, उसके पॉलन को भी तो हम रखते हैं। पॉलन इज आल्सो कंजर्व एज ए जर्मप्लाज्म, रूट भी एज ए जर्मप्लाज्म, फ्लावर बड इज आल्सो, ये सब जर्मप्लाज्म प्लाज्म। 3 नेशनल जीन बैंक ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड एट NBPGR न्यू दिल्ली, CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट लखनऊ and Tropical Botanical Garden and Research Institute, Trivandrum. Now, DBT has funded the establishment of 3 pilot plants. 3 pilot plant भी दिया इन्होंने। कहाँ कहाँ? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी। अब टाटा का नाम बदल गया है कि नहीं आपको अवेयर है? आर यू अवेयर? पहले टेरी का नाम क्या था? टेरी इज वेरी फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन दिल्ली। टेरी का था टाटा एनर्जी। नाउ कुछ डिस्प्यूट होने के बाद उन्होंने अलग करे द एनर्जी रिसर्च, इसका टाटा ही नाम है, रहेगा टेरी। टेरी को मतलब द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ठीक है। 3rd TN व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। दीज पायलट प्लांट्स हैव बीन मैंडेट फॉर, इनका क्या काम है? दे हैव बीन गिवन मैंडेट फॉर माइक्रो प्रोपागेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, टेक, यूकलिप्टस एंड पॉपुलर। इनके माइक्रो प्रोपागेटेड प्लांट्स आर बीइंग इवेल्युएटेड इन द फील्ड ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इनका एप्लीकेशन चल रहा है, पहले से हो गया है। नाउ इन एडिशन DPD हैज इनिशिएटेड एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम फॉर मैन पावर डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक तो ऐसे काम चलता रहा। नाउ DBT थॉट टू हैव इट्स ओन मैन पावर। द प्रोग्राम हैज 2 components, MSc AG, MTech level training at 19 centers located in different in the beginning. Now it is spread all over the country. Postdoctoral training at 3 center. अभी BSc biotech है। Now the real topic starts from here. Genetic engineering. थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग बारे में कैसे होता है, बताते हैं आपको। यू हैव टू हैव लिटिल बेसिक नॉलेज। हमने कल रात में बनाया, आर्ट मेरा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत आपने बनाया कि ज्ञान देने के लिए। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल, एनिमल बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल, प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल, या जितने लिविंग ऑर्गन सबका बॉडी कंसिस्ट ऑफ, दिस इज सेल। सेल के अंदर ह्यूमन प्लांट में क्या था? न्यूक्लियस। क्या है? ये घोड़ा जो न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या दिख रहा है आपको? ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, यू सी फिलामेंट लाइक, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? फिलामेंट लाइक क्रोमोसोम। सोमा मीन्स बॉडी, क्रोम मीन्स कलर्ड बॉडी, नॉट इंग्लिश वर्ड, दिस अगेन ग्रीक लैटिन में भी देख लेना, आई एम नॉट क्लियर। तो क्रोमा मीन्स बॉडी, क्रोमा मीन्स कलर, सो मीन्स बॉडी, कलर। या जब स्टेनिंग करते हैं तो कलर हो जाती है। अब इस थ्रेड को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ऐसे दिखता है ये, फिर बीच में सेंट्रल हमें देख रहे हैं एक सेंट्रियो है, और बीच ये जो है इसमें आपको वेबी लाइन दिख रहे हैं ऐसे, वेबी। ये क्या कहलाता है? DNA।
ये क्रोमोसोम के 2 पार्ट, क्रोमैटिड 1 2, ये 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। अब जब मल्टीप्लिकेशन में जब डिवीजन हो 4 भी हो जाएंगे। अब इसमें वे भी लाइन दीज आर डीएनए, क्या कहते हैं इनको, डीएनए। अब डीएनए का जब और मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो दिस इज डबल हेलिक्स, सीढ़ी लाइक, ये स्ट्रक्चर सीढ़ी की तरह होता है, ये सीढ़ी की तरह बना है और सीढ़ी में डंडे होते हैं ना, जुड़ी होती है। तो दिस लैडर इज ज्वाइंड बाई, ये देखिए डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए जुड़ी है, डीएनए डीएनए मॉलिक्यूल में क्या है, CGAT क्या है हमारी न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, देयर आर 20 अमीनो एसिड नोन टू अस। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, साइटोसाइन, जी से गुआनाइन, एडेनाइन, थाइमाइन, ये आपको थोड़ा जानना पड़ेगा हल्का सा। अब इस डीएनए का और देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा आपने, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब देखिए एडेनाइन, थाइमाइन, थाइमाइन, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, एक सेट होता है कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा, ये फॉस्फेट वगैरह। एनीवे ये डीएनए डबल हेलिक्स का आपको इतने जानना, भी ज़्यादा नहीं जानना है, इतने सुपरफिशियल नॉलेज। बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल, इनसाइड सेल देयर इज न्यूक्लियस। अब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोटोजोआ में न्यूक्लियस नहीं होता है, बाइंडेड, उनको अलग है। अब इस इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज फिलामेंट लाइक, फाइबर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को इसमें देखेंगे तो आपको क्रोमैटिड्स में डीएनए लोडेड है। अब डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिक्स है। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देंगे सही। अब डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर किसने दिया, आपको पूछा जाता है। वाटसन, क्रिक एंड विल्किंसन, 3 साइंटिस्टों ने 1953 में, यहीं से पूरा रिवोल्यूशन हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस 1953 में इन्होंने और ये रिसर्च पेपर आपको मैं लाऊंगा अगर याद आया। एक रिसर्च पेपर हमारे यहाँ तो 50 पन्ने के रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। ये रिसर्च पेपर है, दिस इज ओनली 1 पेज रिसर्च पेपर, 1 पेज। आउट ऑफ दैट 1/4 ऑफ दैट इज ओनली दिस स्ट्रक्चर, ओनली 3/4 is written matter in A4 size, and this paper got Nobel Prize. आपको पता है, small paper with big meaning got Nobel Prize. ये इसमें वाटसन को मिला। नाउ अब जीन, अब हाँ फिर से बताए, ये डीएनए है, डीएनए में क्या है, ये जीन, इसका जीन, ये मतलब जेनेटिक कंपोनेंट है, जेनेटिक कंपोनेंट है। सारी न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन को क्या है, 20 हमने ये जेनेटिक। हम आपको फर्स्ट डे बताए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ ओरिजिनेटेड इन oceanic water by the combination of gases carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, and in the beginning it was genetic material, यानी कि सेल नहीं था ना कोई ऑर्गेनिज्म, पूरा ना जेनेटिक मटेरियल था वो। रादर इज से वायरस इज जेनेटिक मटेरियल, लिविंग नहीं है, मटेरियल है। लेकिन जैसे एज सून एज इट रीचेज इन आवर सेल इट बिकम्स लाइव, इट बिकम्स एक्टिव। तो ये इतना समझ में है कि जीन, तो दिस जीन मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है, इसमें डीएनए लोडेड है और डीएनए में जीन होता है। डीएनए, जीन कहाँ लोडेड है, डीएनए में। देखिए जीन कहाँ लोडेड है, डीएनए में। डीएनए कहाँ लोडेड है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ है, सेल में। इतना समझ में आएगी बात, वेरी सिंपल। अब डिफाइन कर देता हूँ जीन इज, अब जीन की डिफाइन पहले देखिए, जीन की डिफिनेशन, जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिटेज। अब समझ में आ गई, जैसे सेल इज यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ब्रिक इज यूनिट ऑफ वॉल, हाउस। तो जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिटेज या द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसको केमिकल टर्म में कहेंगे, जैसे हमने स्ट्रक्चर दिखाया है, तो ए केमिकल टर्म्स, इन केमिकल टर्म्स जीन इज ए लाइनियर एरे ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ATCG जो दिखाया है। न्यूक्लियोटाइड आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट विच इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग रेप्लिकेशन, ये डिवाइड भी हो जाएगा, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन भी हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, इसकी बहुत कॉपी बन जाएगी, एंड ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेट भी हो जाएगा। इसका इसके अंदर जो भी मैसेज है उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। तो या इसकी डिफिनेशन है, या इनहेरिटेड फैक्टर दैट डिटरमाइंस बायोलॉजिकल कैरेक्टर,
जीन को कई तरीके से तमाम है, जो आपको याद हो जाए वो बोल दीजिए। अगर बोले सिंपल जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इट, बोलता है नहीं और समझाइए तो ये समझाए। अदर इनहेरिटेड फैक्टर दैट डिटरमाइंस ए बायोलॉजिकल कैरेक्टर, अपने आप के वंशों में आपके पेडिग्री से दादा से बाप में बाप से बेटे में जाता है, दैट इज इनहेरिटेड कैरेक्टर, दैट इज इनहेरिटेड फैक्टर। इनहेरिटेड फैक्टर का जीन और दैट डिटरमाइंस कैरेक्टर। बाप लंबा है तो बेटा लंबा हो सकता है, होता है। ह्यूमन में इसलिए कि ह्यूमन होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है। नाउ थोड़ा और बता दें कि क्वेश्चन साइज ऑफ डीएनए। ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 10 ट्रिलियन ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में क्या है 10 बिलियन ऑफ सेल्स, बिलियन में 10 to the power 12। ए ह्यूमन सेल डीएनए टोटल से अबाउट 3 मीटर्स इन लेंथ। अब एक सेल के अंदर जो हमने दिखाया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया, एक सेल में जो डीएनए होता है टोटल डीएनए का साइज में अगर नाप दिया जाए तो होगा 3 मीटर हो जाएगा। अब 3 मीटर को 10 ट्रिलियन में नाप दो। 3 मीटर अगर एक सेल में है तो 10 ट्रिलियन सेल में उसकी लेंथ क्या होगी? इफ यू स्ट्रेच द डीएनए इन ऑल द सेल्स आउट इनटू इन से जोड़ दीजिए सारे डीएनए, दे वुड स्ट्रेच ओवर 744 मिलियन माइल्स। 3 मीटर का डीएनए जो एक सेल के अंदर है, जो आँख से दी जा माइंडेड है, आँख से कुछ नहीं दिखने वाली चीज़ें हैं, ऑल माइक्रोस्कोपिक। डीएनए तो दिखेगा नहीं ठीक से, आपको क्रोमोसोम तक दिखेगा, इट्स नॉट सो इजी। लेकिन जब उसको जोड़ दीजिएगा 10 ट्रिलियन सेल के सारे उसको, तो इट बिकम्स 714 मिलियन माइल्स। मिलियन माइल्स मीन्स कि आगे 6 जीरो और ऐड कर दीजिए, करोड़ 10 करोड़ अरब 7.44 अरब माइल्स। द मून इज ओनली अबाउट 2. मून की डिस्टेंस के हार से 2.5 लाख, ठीक है, माइल्स। अब अगर हम डीएनए को पृथ्वी से डीएनए को लपेट दें ऐसे डोरी में, जैसे लपेटते हैं धागे को, तो 1500 टाइम्स लपेट दिया सकता है। अब देखिए वेरी सरप्राइजिंग थिंग, जो चीज़ आपको आँख से नहीं दिखाई पड़ रही है, इट्स नेचुरल क्रिएशन, नेचर क्रिएशन। आप इसको नाप करके और इसकी लंबाई जोड़ दें तो चांद तक की दूरी को 1500 टाइम्स ये लपेट सकती है। दिस इज नेचर्स। कैन ए मैन क्रिएट? नो, नेवर। नाउ अब आइए जेनेटिक इंजीनियरिंग। इतना समझने के बाद अब आपको समझ में आ जाएगा। हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर गवर्न बाय जीन्स। हेरिडिटी में हमारे आनुवंशिक गुण किससे कवर होते हैं? जीन से। जैसे बाप लंबा है, फादर इज टॉल, बेटा मस्ट बी टॉल। मदर इज फेयर कलर, तो डॉटर मस्ट बी फेयर कलर। आज कोई आए नहीं स्टूडेंट्स, और क्या, मस्ट बी फेयर कलर। इफ वन ऑफ देम इज डॉर्फ, देयर प्रोजेनी मस्ट बी डॉर्फ, ठीक है, राइट। तो करेक्टर जाएगा, और करेक्टर कौन कौन करता है? दैट करेक्टर गवर्न बाय जीन। हेरिडिटी करेक्टर्स आर गवर्न बाय जीन्स लोकेटेड ऑन द डीएनए। आप समझ में आए? जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए which is itself lodged in the chromosome, जो क्रोमोसोम में है, राइट, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। ये लाइन समझ में आएगी ना? जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए which is itself lodged in the chromosomes present in the nuclei of the cell। ये आपको फिगर्स बना दिया। ऑल दैट एक्सटर्नली वी सी ऑफ एन, जो हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, किसी के बड़े बाल होते हैं, कोई गंजा होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा, कोई बैठा चौड़ा, जो हम कुछ बाहर से किसी का भी देखते हैं, दैट करेक्टर इज फिनोटाइप, एक्सटर्नल, बाहर से देखने, नॉट जीनोटाइप, फिनोटाइप करेक्टर, फिनोटाइप करेक्टर। तो क्या हम किसी का शेप, साइज, कलर या फूड प्रेफरेंस, बिहेवियर, इट इज डिक्टेड, और जो भी कुछ देखते हैं दैट इज डिक्टेटेड बाय जीन। स्पेलिंग गलत है, करेक्ट करना है, दैट डायरेक्ट डिक्टेटेड बाय जीन्स एंड कलेक्टिवली वी कॉल जीनोम। हम पूरे जीन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? जीनोम। एक ह्यूमन बॉडी में कितने जीन्स है टोटल, उसको हम क्या कहेंगे? जीनोम। ह्यूमन की जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट में भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैव नाउ डेवलप्ड टेक्निक्स नॉट ओनली टू रीड मैसेज। हर एक बताए हर जीन में करेक्टर है, हर जीन में एक इन्फॉर्मेशन है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट दे हैव कम टू नो
about they have come to know the characters present or information available in the gene. उस जीन में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या करेक्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आप पता कर चुके हैं. कंटेंट इन द जीन्स बट आल्सो टू मैनिपुलेट द लेटर है. अब उसको जब पता हो गया है तो नाउ दे आर एबल टू मैनिपुलेट एज दे विश. अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसा चाहे वैसा मैनिपुलेट करेगा. मान लो कोई प्लांट में ज़्यादा फल हमको फल मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से उसको आइसोलेट कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा जीन्स को, उस जीन को दूसरे में डाल देगा, मैनिपुलेट कर देगा. तो नाउ द प्लांट विल बिहेव एज पर द साइंटिस्ट ऑर्डर. जैसा साइंटिस्ट का ऑर्डर हुआ, यानी मैक्सिमम फ्रूट या जल्दी में अर्ली मेच्योर होना, अर्ली मेच्योर होगा. साल्ट रिडक्शन क्रॉप, साल्ट रेजिस्टेंट और साल्ट डिजीज. इस तरीके से माइक्रोबायोलॉजिस्ट नाउ दे कैन डू. नाउ साइंटिस्ट यानी जेनेटिक इंजीनियर कैन रिमूव. अब देखिए, अब वहाँ पे जीन ही से हमारा नहीं हो पाएगा, हम पूरा सेल पूरा फिगर आते. इवन वी कैन टेक आउट न्यूक्लियस एज सच, और उसको हम दूसरे सेल के न्यूक्लियस में भी डाल सकते हैं. ठीक है, वो भी जेनेटिक इंजीनियर. उससे पूरा जो न्यूक्लियस के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी दूसरे में चले जाएगी, होस्ट में, और होस्ट विल बिहेव एज पर डोनर. डोनर का जो करेक्टर है उस हिसाब से बिहेव करने लगेगा. साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियर कैन रिमूव द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and transplant it in the cell of another organism, which then start behaving not like its parent cell but like the donor. करें आप न्यूक्लियस निकाल के दूसरे के सेल में डाल दीजिए, यानी होस्ट सेल में. अब होस्ट सेल अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, that will work as per the donor information messages contained in gene. यही तो हो रहा है वैक्सीन में, जो कोरोना में. कोरोना इज वायरस, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसमें है जीन्स है. वो जब हमारे लंग्स में जाता है तुरंत हमारे न्यूक्लियस में सेल के अंदर जा करके वो होस्ट में घुस जाता है और उस पर पूरा डोमिनेट कर जाता है. नाउ हमारा जो है सेल वो काम नहीं करेगा अपने हिसाब से. आवर सेल विल स्टार्ट वर्किंग एज पर द जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द जीन ऑफ कोरोना. उस तरीके. नाउ अब आइए, लाइकवाइज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कैन कट ए पीस ऑफ द डीएनए. डीएनए दिखा दिया आपको. इसी तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डीएनए के एक पीस को कैन कट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम. देखिए, कटिंग का मतलब जो चीज़ दिखी नहीं रही आपको कैसे काटेंगे, उसके लिए टेलर की सीजर से नहीं, दर्जी कैंची से नहीं काटा जाएगा. दीज ऑल प्रोसेस गो थ्रू केमिकल प्रोसेस. केमिकल्स के थ्रू और मशीनरी में चलते रहते, कटता रहता है. उसको इंजाइम कहते हैं. इंजाइम का रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस इंजाइम कहते हैं, जिसे काटा जाता है केमिकली. एंड ज्वाइन इट विद द डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म कन्वर्टिंग द लेटर इनटू ए मिक्स्ड और मोर टेक्निकली हाइब्रिड एंड विच इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट. देखिए, आपने एक सेल के अंदर जो है डीएनए का एक छोटा सेगमेंट काट लिया केमिकली, और उस सेगमेंट को लेके कैसे ले जाएंगे, आपने एक वेक्टर में, वाहक में डाल देंगे. वेक्टर क्या होता है, बैक्टीरियल सेल है, एग्रोबैक्टीरियम, डाल देंगे. अब उस सेल को जाके होस्ट सेल के में डाल देंगे, होस्ट किसी जिस प्लांट एनिमल में डालना हो डाल देंगे. तो क्या होगा, जब ये जाएगा तो अब वहाँ जाके रिस्ट्रिक्शन कट जाएगा, से कटा हुआ ले होस्ट सेल में जाएगा. तो ये जो होस्ट सेल के डीएनए पे, जहाँ ये कट पोर्शन डीएनए एक सेल से लिया, तो होस्ट सेल के डीएनए पे ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे इसको कहते स्लाइस हो जाएगा. स्लाइस जैसे स्लाइस ब्रेड खाते हैं हम, कहते भैया 2 स्लाइस ब्रेड देना, स्लाइस्ड ब्रेड, स्लाइस नहीं, 2 स्लाइस्ड ब्रेड देना मक्खन मार के. तो ब्रेड के ऊपर ब्रेड रख दिया तो स्लाइस, तो चिपक गया. अब चिपक गया तो 2 इसमें डीएनए आ गए, एक होस्ट का, एक दूसरे का, डोनर का. इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड डीएनए, या इसी को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए. इतनी बात समझ में आ गई बात है, रिकम्बिनेंट डीएनए. नाउ these identical copies of the cells derived the cells having recombinant DNA retains its ability to divide by mitosis like any other cell but with mixed population of gene. अब जो डीएनए होस्ट सेल में आ गया, होस्ट सेल का डीएनए हाइब्रिड डीएनए. अब इस सेल का करेक्टर क्या है, डिवाइड कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4. अब जब डिवाइड होगा तो होस्ट सेल में क्या हो गया कि मिक्स, इसमें जीन की पॉपुलेशन होगी मिक्स्ड.
तो जो भी सेल डिवाइड होंगे उसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ जीन की होगी। जीन होगा इन मिक्स्ड कंडीशन, दोनों का, होस्ट का भी डोनर का भी होगा, ठीक है। और जब ये आइडेंटिकल कॉपीज, और एक तरीके आइडेंटिकल सिमिलर कॉपीज ऑफ द सेल डिराइव्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। क्लोनिंग जिसे कहते हैं, व्हाट इज क्लोन, इसको क्लोन कहते हैं। अभी फिगर से भी समझे, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेल्स डिराइव्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। अब ये जहाँ माइटोसिस बार बार लिखा हुआ, माइटोसिस सेल डिवीजन, हम बच्चा छोटा होता बड़ा होता चला जाता है, छोटा बच्चा बड़ा बड़ा होता चला जाता है, क्या बड़ा सेल डिवीजन होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल। जो हमारी बॉडी की जो बॉडी होती है इसमें दो तरह के सेल, एक सोमैटिक सेल आया था, क्रोमोसोम, सोम मीन्स बॉडी, क्रोमो कलर, ये हमारी बॉडी क्या है, सोमा, बॉडी सोम। सोमैटिक, जो सोमैटिक सेल बॉडी का सेल जो होता है, इट डिवाइड्स बाय माइटोटिक डिवीजन। दो तरह के डिवीजन, सेल डिवीजन, माइटोटिक एंड माइटोसिस। माइटोटिक ये समझा दे रहा हूँ, आप पढ़ेंगे समझ में रहेगा। तो यानी एक इस सेल का करेक्टर है डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ता जाए, हमारी बॉडी बढ़ती है, हम बढ़ते चले जाएंगे, राइट। लेकिन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, टेस्टिस में या वोमेन में, वहाँ पे डिवीज़न नहीं होता। वहाँ पे होता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म बनता है, या महिलाओं में ओवम बनता है, तो वहाँ माइटोसिस होता है। हमारी बॉडी में सेल जो बना 1 से 2, 2 से 4, 4, तो सेल के अंदर पूरा जीन जो होती है ना, पूरा डिप्लॉयड सेल बॉडी क्या है, 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन है, इसमें XY दोनों क्रोम्स हैं। लेकिन जब हमारे स्पर्म में जब ये डिवीजन होगा, XY का है, तो हैप्लॉयड हो जाएगा, एक किसी में X जाएगा, किसी में Y, किसी में, इसलिए बच्चा मेल भी हो सकता है। ऐसे फीमेल में होता है, उनके अंडों में भी XY होता है। जब वो माइटोसिस से डिवाइड होगी तो वो सेल बनेंगे हैप्लॉयड, उसमें तो कभी लड़की हो सकता है, कभी लड़का हो सकता है। इसको क्या थोड़ा सा हमने इसमें लिखा नहीं, समझा दिया कि हल्का से बेसिक नॉलेज चाहिए। द जीन मैनिपुलेशन टेक्निक इज नोन एज रिकम्बिनेंट DNA टेक्निक। दिस जीन मैनिपुलेशन टेक्निक इज नोन एज, अब जीन मैनिपुलेशन कैसे होता है थोड़ा समझ में आ गया। नाउ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कैन अल्टर द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कैन अल्टर द जीन्स ऑफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन को अल्टर कर सकते हैं, टू द एडवांटेज, अपने एडवांटेज के लिए। इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड टू ऑर्डर। और दूसरे शब्दों में कहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जैसा चाहेगा वैसा ही ऑर्गेनिक प्लांट एनिमल अब बिहेव करेगा, कि हमको जल्दी पकना है पौधे को, जल्दी पकेगा, डिजीज डिसीज हो, डिजीज बन जाएगा, कम ड्यूरेशन की क्रॉप होनी वो भी बन जाएगा, ज़्यादा मिल्क देना तो एज पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी साइंटिस्ट के हिसाब से चलेगा। सच ऑर्गेनिजम्स बिहेव एज द साइंटिस्ट वुड लाइक देम टू बिहेव। क्लियर हो रहा है ना बात, ये ऑर्गेनिज्म वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे साइंटिस्ट चाहेगा, एंड नॉट एज देयर ओरिजिनल पेरेंट्स। वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जीन डाल दिया गया, दैट हैज़ बिकम ट्रांसजेनिक बिकॉज ऑफ रिकम्बिनेंट DNA और स्लाइस DNA और हाइब्रिड DNA। साइंस ऑफ जीन मैनिपुलेशन नाउ अप्रोप्रिएटली कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप बात समझ में आई? साइंस ऑफ जीन मैनिपुलेशन नाउ अप्रोप्रिएटली कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग applied in plant and animal. So this is genetic engineering. Genetic engineering is supposed to have immense use in every sphere of human life, human welfare. Example, rectifying hereditary disease. आपको पता है कि हम अभी कहते हैं कि तो बाप दादा की बीमारी थी, कैसे जाए, हमारे पुराने पीढ़ी में भी था ना, आनुवंशिक बीमारी कैसे, उसको हम उसके एबनॉर्मलिटीज अगर कुछ थी वो भी दूर हो जाएगी। रेंडरिंग पैथोजेंस नॉट ओनली हार्मलेस बट आल्सो, अब जो बैक्टीरिया फंगस या जो प्लांट पैथोजन जो डिजीज काज करते हैं, जिन बैक्टीरिया फंगस वायरस से बीमारियां होती है, उसको भी मैं अपने यूजफुल प्रोडक्ट में बदल सकता हूँ। अब बीमारी नहीं कर सकती, वो हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी। कंट्रोलिंग इंसेक्ट पैसे डिटेल में आएगा, बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ रही बात। नाउ जेनेटिक, अभी एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग पेस्ट। मैंने अभी आपको इसलिए पेस्ट बताया कि एग्रीकल्चर और पेस्ट जानते हैं आप लोग कि ऑल प्लांट्स आर एसोसिएटेड सम इंसेक्ट, इंसेक्ट सर्वाइव ऑन प्लांट्स बाई ईटिंग इट्स पार्ट में भी रूट सूट फ्रूट फ्लावर कुछ भी खा के जिंदा रहता है। तो कैसे पेस्ट वुड भी, यानी जो हार्मफुल इंसेक्ट
हार्मफुल इंसेक्ट वुड बी मेड टू चेंज देयर फूड प्रेफरेंस। मान लो कैबेज, गोभी का पेड़ देखा होगा आपने कभी, या मटर देखा है आपने। मटर छिला तो ग्रीन कलर का कैटरपिलर निकलता है, मटर बिल्कुल ग्रीन कलर का कैटरपिलर। देखिए नेचर क्रिएशन, वाई ग्रीन कलर, जस्ट टू कैमोफ्लाउज, जस्ट टू मिमिक, ताकि उस इंसेक्ट का उसको इनमी उसको पहचान न पानी तो मार देगा। इट्स नेचर क्रिएशन, दिस इज कैमोफ्लाउज, मिमिक्री इज नेचुरल क्रिएशन, नेचुरल फिनोमिनन, ताकि उसका एनिमी कोई बर्ड या कोई ना देखे उसको खा न जाए। और ग्रीन विल जस्ट लाइक ए मटर की फली दाने की तरह, और जब आप छीलेंगे तभी चलता हुआ नजर, अदर साइलेंटली दैट रिमेन्स इनसाइड ईटिंग सीड्स। तो मटर में मान लो कीड़ा खा रहा है, उसको खा रहा है, ठीक है। अब साइंट क्या करता है, प्लांट डिसीज इंसेक्ट वुड बी मॉडिफाइड इन सच वे दैट रिमेन डिलेक्टेबल टेस्टफुल टू मैन बट बिकम्स डिस्टेबल। अब इनसे साइंटिस्ट कर सकता है कि मटर को ऐसा बना देगा जिनसे को दैट विल बी टेस्टफुल टू मैन बट दैट विल बिकम डिसटेस्टफुल टू इंसेक्ट। यानी कि अब वो कीड़ा, वही कीड़ा भागेगा वहाँ से। जैसे आपको देखा है बच्चों को, जो बच्चे बहुत बार बार मुंह में उंगली डाले रहते हैं, देखा होगा बचपन में, तो उनके हाथ में माताएं क्या लगा देती है, हाँ मिर्च, समझ में नहीं, या कुछ बांध देती, कुछ लगा देती, जैसे बच्चा मुंह में डालेगा वो हटा लेता है। तो ये देखिए उनकी दूरदृष्टि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लोग आज जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, आप उसमें लगा देंगे या उसको फिजिकल कर देंगे। बैल जाएगा, ले जाओ, खाएगा तो उसके मुंह में खोंच बांध देते हैं, बैल के मुंह में खोंच कहते हैं उसको, बांध देते हैं। इस तरीके से होता है। नाउ डेवलपमेंट, अब देखिए हो गया डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट पैथोजेन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई फॉर इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। हम बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस दैट रिमेन इन द नेचर, दैट आकर इन नेचर, वी कैन डेवलप देम फॉर कमर्शियल यूज एंड वी हैव डेवलप्ड दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर कमर्शियल, दैट इज इन द मार्केट अवेलेबल। और पर इसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई में क्या है, वी हैव सक्सीडेड लार्जली इन बैक्टीरिया एंड टोटल आउट ऑफ टोटल बायोपेज 90% इज बैक्टीरियल प्रोडक्ट। यूज ऑफ बैक्टीरिया फॉर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड टॉक्सिन्स फॉर इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। अब हम बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया यूज भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया में टॉक्सिन्स होते हैं, एक होता है, अभी आएगा हम बताएंगे, बीटी, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन होती है। उस आईसीपी, अब बैक्टीरिया के अंदर जीन है, जीन में पता है कि विच जीन कैरीज दैट टॉक्सिन कैरेक्टरिस्टिक। इस जीन को हमने डाल दिया पौधे में, मटर के पौधे में, तो अब मटर का पौधा क्या हो जाएगा, इट बिकम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और दिस प्लांट नाउ विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। जो बैक्टीरिया में टॉक्सिन था वो इंसेक्ट में आ जाएगा, प्लांट में आ जाएगा। सपोज इंसेक्ट कोई खाता है तो इंसेक्ट विल डाई ऑटोमेटिकली। और बाय दिस टेक्निक इन्वायरमेंट को या किसी को कोई केमिकल, जैसे केमिकल में नुकसान होता है केमिकल यूज से, इसमें नहीं हो सकता। नाउ एक थोड़ा सा मैं बता दूं, जरा सा 2 स्लाइड और है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाने के पहले मुझे थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग कैसे होती थी, इट इज़ नोन सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत पहले से हमारा जब सिविलाइजेशन 9000 साल यानी 11,000 BC, 11,000 साल पहले से, 11,000 years बैक। प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट ऑफ एंड साइंस ऑफ चेंजिंग द टेस्ट ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर। हमारे प्लांट ब्रीडर यानी जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जो डिपार्टमेंट, उनका साइंटिस्ट जो क्या करें, दे आर ऑलरेडी मैनुअल प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स से यूज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू सी द जीन्स, दे आर आइडेंटिफाई द प्लांट्स फिनोटाइपिकली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर, कि इस पौधे में भुट्टे ज़्यादा लगे हैं, राइट, बाकी में कम लगे हैं। लेकिन कम वाला क्या है कि ड्रॉट रेसिस्टेंट है, कम पानी में भी हो जाता है। तो क्या चाहते हैं कि इस वाले आप कैसे करेंगे, जीन तो नहीं डालेंगे, इस मेल वाला जो ज़्यादा पैदा हो रहा है इसका पॉलन ग्रेन ड्रॉट वाले फ्लावर पे डाल देंगे तो उसमें फीमेल उसका फ्लावर एक्सेप्ट कर लेगा, और उससे जो भुट्टे बनेंगे तो नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या होगा, उसमें ईल्ड भी ज़्यादा होगी और ड्रॉट रेजिस्टेंस पानी की भी कम हो जाएगी। ये पहले हमारे साइंटिस्ट अभी भी कर रहे हैं, इस टेक्निक जारी जैसे मैनुअल। प्लांट बायोलॉजिस्ट कैन भी अब एक देखिए, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, जा तो रहा है जीन ही, इस प्रोसेस जो मैनुअल में भी जा तो रहा जीन। मेंडल ने क्या किया था,
मेंडल ने मेरे तमाम करेक्टर्स के आधार पर अपने बगीचे में देखा कोई मटर लाल है, कोई हरा है, किसी का दाना स्मूथ है, किसी का झुर्रीदार है, कोई पौधा टाल है, किसी पर लंबा है, और क्रॉसिंग करना शुरू कर दिया उसने। तो देखिए फैक्टर क्या इन्वॉल्व था, जीन, लेकिन दैट टाइम इट वाज नॉट सीन। बच्चों समझ रहे हो, वो दिखाई नहीं पड़ता था जो आज हम देख करके कर रहे हैं। तो ये बेस हमारी प्लांट ब्रीडिंग पहले से चली आ रही है। इतना बात समझ में ना? नहीं ना, अभी थोड़ा से पढ़ नहीं पाओगे आप, मैं देखने में बता, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए माइलस्टोन क्या है प्लांट ब्रीडिंग, 9000 BC यानी 11 आज से 11,000 साल पहले फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट डोमेस्टिकेशन इन हिल्स एबव द टाइग्रिस रिवर। पहला ये प्लांट के जो है जिसका डोमेस्टिकेशन, प्लांट डोमेस्टिकेशन, जिसका डोमेस्टिकेशन जैसे जानवर, गाय के आपके घर में थोड़ी पैदा हुई है, बकरी या रैबिट कुत्ते आप घर में थोड़ी, ऑल वाइल्ड क्रिएटेड बाय नेचर। हमने उनको क्या किया, डोमेस्टिकेट कर लिया है। इसी तरीके से प्लांट्स आपके साथ पैदा नहीं, आपके घर में नहीं पैदा हो गए, हमने उनको डोमेस्टिकेट कर लिया। तो 11,000 ईयर्स बैक यानी 9000 BC फर्स्ट प्लांट evidence of plant domestication is proof in above the Tigris river। अब उसके बाद 1694 में कैमेरेरियस फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड सेक्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट में एक पौधे में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं। जिस पौधे में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हों उसे बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। अब जैसे हम ह्यूमन में अलग अलग है मेल फीमेल, तो हम इसको कह रहे हैं डायोसियस। क्या बोलेंगे, डायोसियस। केचुआ में एक ही में मेल फीमेल होता है तो उसको कहते हैं मोनोसियस। पपीता अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल, तो डायोसियस। ये बात समझ में बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो ये करेक्टर सबसे पहले सेक्स किसने बताया, 1694 में कैमेरेरियन से। फिर क्रॉसिंग, नेचुरल क्रॉसिंग वाज ऑब्जर्व्ड इन मेज बाय मैथर इन 1714 में। देखा कि जब नेचुरल कैसे बन रहे हैं तो उसने किया नेचुरल। फिर क्या हुआ, आप सेकंड छोड़िए, 1866 में आ जाइए। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल 1866 में ही डिड एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। आपको बताया कि भाई यूजिंग प्लांट्स पी पाइजम सटाइबम बेस्ड ऑन देयर करेक्टर टॉल एंड स्मॉल ड्वार्फ, फ्लावर करेक्टर रेड एंड वाइट, सीड करेक्टर स्मूथ एंड रिंकल। इस करेक्टर पे देखा कि ये वेरिएशन क्यों है, तो उसने क्रॉसिंग करना शुरू किया। तो पहला करेक्टर ग्रेगर मेंडल 19, लेकिन आवर साइंटिस्ट ऑफ दोज टाइम थॉट हिम एज ए मैड पर्सन, कि पागल है। और आफ्टर 36 ईयर्स 1900 में जब साइंटिस्ट को पता चला नहीं ही वाज नॉट पागल, वी आर पागल, then they gave Mendel's law of heredity। कई इसके मेंडल कई लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिव, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इस तरीके से कई है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस सुना होगा ना, मेंडल्स के 3 लॉ हैं। 1900 में बताया। अभी 1900 मीन्स अभी जैसे 120-21 साल पहले की बात है। और 1944 में मतलब आज से करीब 80 साल से कम लगभग, एवरी मैक्लोडो मैककार्टी डिस्कवर डीएनए। इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। अभी जीन पे नहीं आया है, ही डिस्कवर डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। कब? 1944 में, यानी 75-76 ईयर्स बैक, बहुत लेटेस्ट है। और 1953 में आप बोला वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस प्रपोज्ड मॉडल ऑफ डीएनए। तो बता दिया डीएनए जो मटेरियल है, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, इट वाज टोल्ड बाय वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस 1953, फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज। नाउ बहुत हाल की बात है, 1970 नॉर्मन बोरलॉग, यू मस्ट नो and all of you must know compulsorily, received Nobel Prize for the gene revolution, for the green revolution, not for the green revolution. Already I have told in previous lecture. Now 1994
फ्लेवर सॉरी आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन बर्ग कोहेन एंड बायर इंट्रोड्यूस द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया, आज से 70-75 साल पहले रिकम्बिनेंट जो हमने आपको बताया दैट टेक्नोलॉजी वार इंट्रोड्यूस की गई। नाउ 1994 में, यानी 94 में 25-26 साल पहले, 25-26 ईयर बैक, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट फ्लेवर सेवर टोमेटो वाज डेवलप्ड। जानना आपको याद है, फ्लेवर सेवर टोमेटो भी और आएगा, फॉर टेबल फॉर ईटिंग बाय ह्यूमन, बट इट वाज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोडक्शन का, इसमें प्रोडक्शन का नहीं बंद कर दिया गया। नाउ 1995 में बीटी कॉर्न डेवलप, यानी कि अभी 25-26 ईयर्स बैक बीटी कॉर्न में, बीटी कॉर्न इंडिया इज ग्रोइंग बीटी कॉर्न एंड बीटी कॉटन, दो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं ना, बीटी कॉटन एंड बीटी कॉर्न। ये थोड़ा हमने आपको हिस्ट्री में बता दिया। नाउ व्हाट इज ट्रांसजेनिक, टाइम कितना हो गया जरा बताइएगा? 10:30। थोड़ा सा एक स्लाइड ले लें और छोड़ दें, क्योंकि कॉस्ट्यूम आई नीड, आई थिंक देयर विल बी थ्री लेक्चर्स। व्हाट इज ट्रांसजेनिक, अभी इतना, क्योंकि ट्रांसजेनिक आई वांट टू टेल यू बिकॉज इन सीक्वेंस ऑफ जीन मैनिपुलेशन जो बताए। ट्रांसजेनिक, अब एनी प्लांट दैट हैज ए फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, समझ में आ रही है? एनी प्लांट दैट हैज ए फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ एक्सट्रानियस नेचर, जो बाहर से आया हो, ट्रांसफर्ड इंटेंशनली, जानबूझ के। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, वी डू एवरीथिंग इंटेंशनली, जानबूझ के, अननेचुरल विथ अननेचुरल प्लांट। तो एक्सट्रानियस नेचर ट्रांसफर्ड इंटेंशनली इन अननेचुरल होस्ट यूजिंग रादर अननेचुरल मेथड। समझ नहीं पा रहा, हर चीज़ अननेचुरल होकर इंटेंशनली हम कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। वाई इसको कहते हैं ट्रांसजेनिक, अभी ट्रांसजेनिक की और डिफिनेशन आएगी। वाई ट्रांसजेनिक, क्या जरूरत है हमें ट्रांसजेनिक की? हम तो खेती बाड़ी कर ही रहे हैं, पौधा उगा रहे हैं। यस, इट इज़ फॉर मोर फूड, बेटर फूड and better environment. Thus transgenic is extension of plant breeding at a mark, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग से अलग नहीं हुआ, प्रीवियस प्लांट ब्रीडिंग और इसमें समानता है, एक्सेप्ट वन डिफरेंस। वो फैक्टर कहते थे, जीन नहीं जानते थे और एक्सटर्नली किया करते थे बाय क्रॉस ब्रीडिंग, और जेनेटिक में क्या है, हम लोग इंटेंशनली कर रहे हैं और जीन को हम जीन डाल दे रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ थोड़े 1-2 स्लाइड के बाद स्टॉप कर दें, राइट। ट्रांसजेनिक जीएम टेक्निक, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैव जीन्स एडेड फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैव आइदर जीन्स एडेड और जीन्स रिमूव्ड, या तो जीन्स ऐड कर दिया, स्लाइस बन गया वो भी, और जिससे निकाला गया वो भी ट्रांसजेनिक हो गया, उसके बाद हमने निकाल दिया। तो अब इसकी टेक्निक क्या, अब जीन आपने बताया, जीन डाल दिया, कट किया, चला गया, कैसे किया, कोई दर्जी की कैंची तो है नहीं, आँख से कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसके लिए टेक्निक्स है जिसमें दो नाम जान लीजिए आप, एक जीन गन होती है, दूसरा, ये सारी टेक्निक छोड़ दीजिए, जीन गन एंड एग्रोबैक्टीरियम। या तो हम जीन गन से हमने सब पे काम किया है, या एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया जिसके थ्रू हम चलते हैं। ये देखिए हमने कहा कि जीन कट करके किसी वाहक वेक्टर के थ्रू डाल करके दूसरे में हम, ये हमने देखे, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, डीएनए किसी का हमने ले लिया जो हमें डालना है, ये हम सेल में डाल दिया बैक्टीरिया में, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल, अच्छा, या होस्ट सेल भी ले, इसको हमने कट कर दिया, यहाँ देखा कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, कट करने के बाद अब हमने हमारा ये डीएनए आ गया। अब देखिए इस पर स्प्लाइस हो गया ना, एक दूसरे पे चढ़ गया, चढ़ने के बाद कंप्लीट हमारा ट्रांसजेनिक बन गया। इस तरीके से नाउ आई थिंक आई मस्ट स्टॉप फ्रॉम दिस स्लाइड, आई विल स्टार्ट टुमारो, ओके, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ